Yes, a very good afternoon to everyone. Is audio video clear? Can you please confirm this? So, today we will be having the series of this top 100 MCQs for AFO, IDBI and your NSC Agri Trainee exam. Okay, so in this series, like if you haven't completed your syllabus या आपने अच्छे से syllabus नहीं किया है, तो from this series or from these top 105 MCQ series, you will be covering your whole syllabus. ठीक है, आपका पूरा syllabus अच्छे से इसमें cover हो जाएगा. ठीक है, you need not to go through your notes and all this because इसका जो exam है, you will be having the exam like late of your if I'll say IDBI और NSC का जो होगा आपका अर्ली जनवरी और लेट ऑफ दिसंबर में आपका एग्जाम शेड्यूल है एंड IBPS AFO का all you knows that it is in your on your 14th of December. Okay, so this series will be going to help you a lot, like lot of questions we will cover from there and from each sections. And the questions which I am going to discuss today, these are on easier side, थोड़े से easier side होंगे, basic conceptual questions होंगे, mixed होंगे, but from the next lecture we will be having topic wise question, कुछ थोड़े बहुत mixed होंगे and we will go from easier to difficult क्वेश्चंस. ठीक है, आज के फर्स्ट लेक्चर है तो हमें इजी से ही स्टार्ट करना चाहिए, तो आई विल बी हैविंग दैट easier side of the questions. And one more thing I want to tell you that we have launched our test series जो कि you will be getting at a very minimal प्राइस पे आपको अवेलेबल होगी. ठीक है, जो आप लाइक 200 रुपये आप लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं, तो दिस test series will be available to you at 199 rupees. Okay, and for 10 full length mock test होंगे इसमें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. आई थिंक यू मस्ट ज्वाइन दिस. ठीक है, इसमें बिल्कुल जो क्वेश्चंस हैं, द क्वेश्चंस वर ऑफ योर एग्जाम लेवल एंड बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, और सारा सिलेबस आपका इसमें कवर्ड है. इट विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर योर IDBI एग्जाम, AFO एग्जाम एज वेल एज योर NSC एग्जाम. ठीक है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस होंगे आपके एंड दिस विल बी गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. यू मस्ट सब्सक्राइब फॉर दैट. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए लाइक you are getting 10 mock tests in just 199 rupees is nothing. I think this is the most cheapest rate test series which is available in the market right now. ठीक है, so let's start our today's session. These are in one liner format. ठीक है, थोड़े one liner format में है. So the first question is which protein is present in your soybean? सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन आपका प्रेजेंट है? सो द आंसर इज योर ग्लाइसिनिन. ठीक है, जो आपका प्रोटीन है इसमें कौन सा प्रोटीन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो द प्रोटीन, which protein is present in your soybean? So the protein which is present in soybean is your glycinin, which makes up to 80% ठीक है of the protein content in your just wait a second. Okay, let's start. So the protein which is present in your soybean is your glycinin protein, which makes up to 80% of the protein content of soybean. Okay, and along with this glycinin you will be having your conglycinin protein as well. Okay, in your soybean. Next question is, this is PYQ as well in 2021 and 2022 AFO exam में आपसे पूछा हुआ है, which protein is present in silk? सिल्क में आपका कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? सो द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन सिल्क आर, देयर आर टू प्रोटीन. वन इज योर फिब्रोनिन एंड द सेकेंड वन इज योर सारिसिन. ठीक है, सो दीज टू प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन योर सिल्क एंड द फर्स्ट वन फिब्रोनिन, नेम से ही विजिबल है कि ये आपका फाइब्रस प्रोटीन है. ठीक है, फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसका होगा एंड इट मेक्स अप टू 75% ऑफ द सिल्क. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि विच, अगर दोनों ही ऑप्शन आपको गिवन हो एंड द क्वेश्चन आस्क कि विच इज द मेजर प्रोटीन फाउंड इन योर सिल्क, मेजर कौन सा है, तो दैट इज योर फिब्रोनिन. नाउ सारिसिन, it makes up only up to 25% of your this सिल्क फाइबर प्रोटीन. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, इफ दिस इज द प्रोटीन ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन सिल्क. लुक है, जो फिब्रोनिन है ये अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा. ठीक है, इसके ऊपर
ठीक है, जैसे मैंने एक बुक ली, बुक के ऊपर कवरिंग की, तो दिस सर्सिनिन इज प्रेजेंट इन द कवरिंग फॉर्म, ये उसके ऊपर कवर्ड है, ठीक है, इन द ग्लू लाइक फॉर्मेट, सो दैट कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो फिब्रोनिन है इसको स्ट्रेंथ मिले। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, बिकॉज इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दैट फिब्रोनिन, ताकि ये डिग्रेड ना हो बहुत जल्दी, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द मेजर, these are the two major proteins which are present in your silk, ठीक है। The next question is, which enzyme is involved in the biological nitrogen fixation? Just wait, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है नोट में। This is very important. Which enzyme is involved in the biological nitrogen fixation? कौन सा सबसे important enzyme है जो आपका biological nitrogen fixation में involved है? So the enzyme is your nitrogenase. कौन सा enzyme आपका involved है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, लाइक जो प्लांट्स है आपके, ठीक है, प्लांट जनरली लाइक cannot utilize or they are less efficient in utilization of atmospheric nitrogen. तो क्या करते हैं, specifically your pulses, so they are not able to utilize this nitrogen which is present in the atmosphere, so they need the help of some other microorganism, उनको कुछ microorganism की help चाहिए so that कि वो उसको हेल्प कर सके। अब क्या करते हैं, इसमें होता क्या है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जो आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, दैट इज डाइनाइट्रोजन भी जिसको हम बोलते हैं, दिस डाइनाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू योर अमोनिया। किस में कन्वर्ट हो जाती है ये आपकी, अमोनिया में, अमोनियम आयन, विच इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट, स्पेसिफिकली योर पल्स क्रॉप के अंदर, है ना। पल्स क्रॉप में आपके सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि आपके रूट नोड्यूल्स पे पल्स क्रॉप के अटैच हैं। अब वो पल्स क्रॉप में क्या करते हैं, देवर लाइक कि वी नीड न्यूट्रिशन, हमें खाना चाहिए या हमें न्यूट्रिशन चाहिए, वी विल गेट इट फ्रॉम द पल्स क्रॉप। कोई भी लेग्यूमिनस क्रॉप है या कोई भी पल्स क्रॉप है, वहां से उनको न्यूट्रिशन मिल जाए। इन रिटर्न अब जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट है वो क्या कहता है कि भाई इन रिटर्न मुझे भी कुछ चाहिए, तो दे विल फिक्स नाइट्रोजन फॉर दैट, वो उसके लिए क्या फिक्स करके दे देते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन प्रोसेस है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन डाई नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू विच फॉर्म, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू योर अमोनिया। किस फॉर्म में प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, सो अमोनियम आयन में करते हैं, कुछ नाइट्रेट में करते हैं, तो दैट इज नॉट इन नाइट्रोजनस फॉर्म, ठीक है। प्योर नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। सो दिस इज द वन थिंग। नेक्स्ट दे कैन आस्क यू अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। सो कौन से हैं, लाइक योर एसिटोबैक्टर हो गया, या योर राइजोबियम, द मोस्ट फेमस वन, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, तो ये आपके हेल्प करते हैं फॉर योर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ आई विल टेल यू वन फ्यू मोर थिंग्स एज वेल, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं आपसे। लुक है, अब क्या होता है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन इज हाईली सस्पेक्टेबल टू लॉसेस। नाइट्रोजन क्या है आपका, हाईली सस्पेक्टेबल टू लॉसेस, ठीक है। मैंने इसको फील्ड में अप्लाई किया या फील्ड में अवेलेबल है, तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अब कौन कौन से लॉसेस होते हैं इसमें, सो द वन ऑफ द लॉस इज योर डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, एक लॉस होता है आपका डीनाइट्रिफिकेशन। द सेकेंड वन इज योर लीचिंग, एंड द लास्ट वन इज योर वॉलेटिलाइजेशन। अब देखते हैं, ठीक है। तो अब डाइनाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन लॉस में होता क्या है, हेयर द
NH3 like ammonium ion or your specifically your nitrate, nitrite ion, ये वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, लाइक दिस इज बाय योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, लाइक जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन हमने की कि हमने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया, फर्दर उसके बाद आपके नाइट्रोबैक्टर वगैरह आते हैं जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, विच कन्वर्टेड इनटू योर नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में आपका कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब आते हैं आपके डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने तो क्या किया, उस जो NH3 था उसको फर्दर नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट किया। अब ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उस साइकिल को रिवर्स कर देते हैं, वापस उसको एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो अगर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो व्हाट विल दे डू, दे जस्ट कन्वर्ट this nitrate and nitrite into N2, वापस से उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन में उसको कन्वर्ट कर देंगे, विच इज गैसियस इन फॉर्म एंड लॉस टू द एटमॉस्फेयर। सो दिस इज द वन ऑफ द लॉस। नाउ लीचिंग लॉस, जो नाइट्रोजन है दिस इज हाईली सॉल्युबल, बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, इजीली डिसॉल्व हो जाती है। तो जैसे ही हमने बहुत ज्यादा पानी दिया, इरिगेशन की, या फिर आपका बारिश बहुत ज्यादा हुई, तो इट विल लॉस टू द लीचिंग पानी के साथ साथ लीच आउट कर जाएगा टू द लोअर लेयर एंड विल नॉट बी अवेलेबल टू द प्लांट्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग, वॉलेटिलाइजेशन। अब ये जो वॉलेटिलाइजेशन है, एज नाइट्रोजन अगेन इज वॉलेटाइल इन नेचर, वॉलेटाइल इन नेचर मीन्स कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इट विल लॉस टू द इट विल लॉस इन द एटमॉस्फेयर इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है, गैसियस फॉर्म में वो वापस से लॉस हो जाएगा। अब वॉलेटिलाइजेशन में क्या होता है, दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, आपसे कोई भी एक प्रोसेस का कुछ भी पूछ सकते हैं कि डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आयंस जो है वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है, योर सूडोमोनास, थायोबैसिलस। ओके, नाउ लीचिंग, जो ग्राउंड वाटर है, सॉरी जो लीचिंग वाटर है इरिगेशन या वाटर के साथ साथ वो लीच आउट कर जाता है टू द लोअर लेयर बिकॉज ऑफ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वॉलेटिलाइजेशन गैसियस लॉस है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस लॉस ऑफ नाइट्रोजन, तो दैट इज योर वॉलेटिलाइजेशन। वॉलेटिलाइजेशन में क्या होगा आपका कि जो नाइट्रोजन है दिस नाइट्रोजन इज सॉरी नॉट दिस अमोनियम गैस NH4 ion is converted into gaseous ammonia या ammonium gas, अमोनियम गैस दैट इज NH3, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल लॉस टू द एटमॉस्फेयर। वॉलेटिलाइजेशन इज योर गैसियस लॉस और वो आपका एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। सो दीज आर द लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन। अब इन लॉसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, लाइक जो हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं बहुत ही स्मॉल ग्रेन्यूल साइज था, अगर उसके ऊपर मैं एक कोटिंग अगर लगा दूंगी तो इट विल रिड्यूस इट्स वॉलेटिलाइजेशन लॉसेस। जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जब हम फील्ड में अप्लाई करते हैं दे आर मोस्टली लॉस बाय वॉलेटिलाइजेशन। तो मैंने अगर उसकी जो डायमीटर है मैं उसको इंक्रीज कर दूंगा, उसके ऊपर कोई कोटिंग लगा दी तो इट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम द लॉसेस एंड द कोटिंग वर ऑफ योर बोरेक्स कोटिंग हो गया, नीम कोटेड यूरिया हो गया, नाउअडेज देयर इज अ सल्फर कोटेड यूरिया एज वेल, सो दे विल प्रिवेंट दैट from the losses. And there is a one loss as well, that is immobilization of nitrogen. Immobilization में क्या होता है आपका कि there were your few microorganism जो क्या करते हैं नाइट्रोजन को गेन कर लेते हैं, वो अपने पास उसको अपनी बॉडी में इमोबिलाइज कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, दे विल नॉट लेट द नाइट्रोजन टू रिलीज इन द सॉइल, तो दैट इज योर इमोबिलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या होगा, जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी एंड दैट नाइट्रोजन कम्स इनटू द सॉइल सॉल्यूशन, दैट इज योर मिनरलाइजेशन। गॉट माय पॉइंट, अंडरस्टूड दिस? आया भाई सभी को समझ में? सो the next question is which vitamin contains the metal ion, which is the only vitamin which contains the metal ion. So here the answer is your vitamin B12, ठीक है। जो vitamin B12 है ये अकेला ऐसा आपका वो है विटामिन है जिसमें क्या होता है आपका योर मेटल आयन, और कौन सा मेटल आयन होता है, दिस इज योर कोबाल्ट, ठीक है,
This is the only vitamin which contains a metal ion, and that कौन सा metal है? That is your cobalt. ठीक है, सबसे ज्यादा इसका complex structure है, and this is generally this like vitamin B12 is suggested that vegetarians को खाना चाहिए, because vegetarians जो आपका meat वगैरह खाते नहीं है, so this is very beneficial for vegetarians as well. Okay, this is recommended कि vegetarians को आपका विटामिन B12 लेना चाहिए, और यही अकेला एक ऐसा विटामिन है जिसमें मेटल आयन होता है, एंड विच मेटल आयन इज प्रेजेंट देयर, दैट इज योर कोबाल्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज. ठीक है, गोल्जी बॉडीज का सबसे मेन फंक्शन क्या है? सो द मेन फंक्शन इज दैट कि इट पैकेज योर फूड मटेरियल. जो सेल के अंदर हमारा फूड मटेरियल नहीं, हमने खाना खाया, it got assimilated and absorbed in our body, which is further goes to the cells. वो cells के पास जाता है, further उसकी metabolism होता है, that metabolized inside our cell as well. तो वहां पर जो आपके प्रोटीन और फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं specifically, they were packaged there. जैसे we order food from Swiggy and Zomato, ऐसा थोड़ी है कि वो ला करके हमें ऐसे दे देते हैं. They just pack that food ना, वो उसको पैक करते हैं प्रॉपरली किसी कंटेनर में डाल के, फिर उसके ऊपर में टेप वगैरह लगाते हैं ना, सील पैक करते हैं. सिमिलरली लाइक दैट कि जब हमने हमारी बॉडी ने एसिमिलेट कर लिया उस फूड कंपाउंड को, नाउ इट हैज टू बी पैक्ड टू सेंड इट टू द अदर सेल ऑर्गेनल्स, और सेल्स को पहुंचाने के लिए, सेल्स में जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं उनमें पहुंचाने के लिए उसको पैक करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो पैकेजिंग का काम कौन करता है उस फूड मटेरियल का? योर गोल्जी बॉडीज. और ट्रांसपोर्टेशन का ER एंड राइबोसोम्स. ठीक है, सो स्पेसिफिकली योर प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स. गोल्जी बॉडीज क्या करता है? इट पैक्स अप द प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल. गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which plastid of the cell is responsible for photosynthesis in the plant. कौन सी प्लास्टिड है? सेल्स में आपके डिफरेंट प्लास्टिड्स होते हैं ना, लाइक योर क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, योर क्लोरोप्लास्ट. सो इट इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फोटोसिंथेसिस. तो ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं, कौन सा है? दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? योर क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर में? First of all, the structure of a chlorophyll is your porphyrin ring. Porphyrin ring का इसका structure होता है. ठीक है, I am not very good at drawing. ऐसे 5 ring like structure है जो इस तरीके से आपका available होता है, and in the center of that there is a magnesium. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए which element is present in the chlorophyll, structure of the chlorophyll, तो that is your magnesium. कौन सा present होता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है. द नेक्स्ट थिंग इज दैट अब जो ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट है, दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट विच हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. अब इसके अंदर कौन सा मेटल या एलिमेंट प्रेजेंट होता है? दैट इज योर मैग्नीशियम. अब आपका क्वेश्चन आता है कि विच chlorophyll pigment is specifically for absorption of sunlight to perform your photosynthesis. तो कौन सा है? chlorophyll A and chlorophyll B. Only these two pigments of chlorophyll are responsible for photosynthesis. कितनी वेवलेंथ की कितनी रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं टू परफॉर्म योर फोटोसिंथेसिस? दैट इज योर 400 to 700 नैनोमीटर. ठीक है, इतने वेवलेंथ की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, सो आप देखो इन 7 क्वेश्चंस की हमने कितने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. नाउ विच प्लास्टिड ऑफ अ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन प्लांट्स? कौन सी आपकी प्लास्टिड है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज योर क्रोमोप्लास्ट, है ना. क्रोमोप्लास्ट जो है आपकी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? टू गिव द कलर. अब जो हम प्लांट्स में देखते हैं, जैसे बीट रूट हो गया, है ना, the color of the beetroot is due to the presence of which pigment? That is your betalains. जामुन का कलर है because of anthocyanin, है ना. तो different plant having different color and that comes due to different type of chromoplast. जो chromoplast है generally जो pigments बनाता है, they are generally your fat soluble.
ठीक है, फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं ये। एंड कौन से हैं जनरली, जो ज्यादातर मतलब मेजॉरिटली दे फॉर्म योर कैरोटिनिन एंड ज़ेंथोफिल। जैसे आपका टोमेटो, कुछ एक पिगमेंट्स याद कर लो, टोमेटो में कौन सा होता है, लाइकोपिन, एंड योर कैरोटिनिन कैरेट में, एंथोसाइनिन जामुन में, बिटालिन्स इन योर बीटरूट. So these are your few of the pigments and generally chromoplast makes only the fat soluble pigment जो कि फैट में solubilized होते हैं, वाटर में नहीं. क्यों ऐसा करते हैं? अगर वाटर में solubilized होंगे तो what happen, जब पानी जब आपका प्लांट जो है वाटर एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल लॉस टू द ट्रांसपिरेशन से लॉस होगा, तो वो सॉल्युबल होंगे वाटर में, सो दैट पिगमेंट विल आल्सो लॉस्ट along with that ट्रांसपिरेशन वाटर, जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो एक्सेस वाटर लॉस होगा वहां से हमारा ये भी लॉस हो जाएगा. द नेक्स्ट इज विच of the following, which plastid is responsible for the storage of starch and fat in plant. स्टार्च के लिए, स्टार्च एंड फैट के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी ऑर्गेनल प्लास्टिड आपकी रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज योर ल्यूकोप्लास्ट. जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो ल्यूकोप्लास्ट है आपकी, इट स्टोर्स द फूड मटेरियल और द फूड रिजर्व इन अ प्लांट. ठीक है, एंड विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिकली योर स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन्स के फॉर्म में वो स्टोर करके रखती है. दैट इज ल्यूकोप्लास्ट. नाउ and these leucoplasts are found generally in your roots, stems, ठीक है, जो and fruits as well, जो plant के part जिनको हम consume करते हैं, this leucoplast is found in only those part of the plant. Now the next question is which of the leucoplast, अब leucoplast भी different type की होगी, ऐसा तो नहीं है ना, like you are having different container in your kitchen, आपके kitchen में अलग अलग container रखे होते हैं ना, कि एक में मैंने दाल स्टोर करके रखी है, एक में बेसन है, एक में चावल है, तो अब ल्यूकोप्लास्ट ऐसे सब मिक्स करके तो स्टोर नहीं करेगा, it will have proper format for that ना, कि इसमें मेरे को प्रोटीन स्टोर करना है, इसमें मुझे फैट स्टोर करना है, इसमें मुझे आपका कार्बोहाइड्रेट्स या फिर आपका लिपिड्स प्रोटीन स्टोर करना है. तो इट इज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर डिफरेंट कंपाउंड. तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि फैट कौन स्टोरेज करेगा, तो द फैट इज स्टोरेज बाय योर इलियोप्लास्ट. कौन करता है, इलियोप्लास्ट. एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. द वन इज योर एमाइलोप्लास्ट दैट स्टोर्स योर स्टार्च. ठीक है, स्टार्च को स्टोर करता है. अब यहां से देखो, स्टार्च जो जनरली जो स्टार्च का स्ट्रक्चर है, इट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स. 2 तरीके कार्बोहाइड्रेट शुगर होती है जिनसे ये बना है. द वन इज योर एमाइलोपेक्टिन एंड द वन इज सेकेंड वन इज योर एमाइलेज. एमाइलेज एंड एमाइलोपेक्टिन, ये 2 आपके स्टार्च है जो जो विच मेक्स अप दैट स्टार्च मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड दिस एमाइलोप्लास्ट, याद करने के लिए ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है. एमाइलो से एमाइलो नाम शुरू हो रहा है, जिससे आपका स्टार्च बन रहा है, और वहीं से ये आपका एमाइलोप्लास्ट. नाउ एल्यूरोप्लास्ट. एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं, योर प्रोटीन्स. इलियोप्लास्ट स्टोर्स योर फैट्स एंड ऑयल. Next question is, who gave the chromosomal theory of inheritance? Chromosomal theory of inheritance किसने दी थी? So this theory was given by Sutton and Boveri. ठीक है, Sutton and Boveri ने ये दिया था आपका, and they have stated, उन्होंने जब ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट्स किए तो they found out and they give the साइंटिफिक रीजन फॉर मेंडल एक्सपेरिमेंट, जो मेंडल ने किए थे ना, जो लॉज मेंडल ने दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो दे गिव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, कि जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो क्यों ऐसे रिजल्ट्स उसमें आए, को इनहेरिटेंस आया, कोडोमिनेंस वगैरह के जो फैक्टर्स आए वो क्यों हुआ बाद में. तो दे हैव एक्सप्लेन दैट थिंग एंड व्हाट दे सेड इन दिस देयर क्रोमोसोमल थ्योरी, कि क्रोमोसोम्स के ऊपर ना आपके डिफरेंट जीन्स अवेलेबल है. मैं बहुत ब्रीफली इसको बता रही हूँ. ठीक है, तो दे हैव गिवन 2 थिंग्स. द वन इज योर लिंकेज एंड द सेकेंड वन इज योर क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, एक उन्होंने दिया लिंकेज और दूसरा उन्होंने दिया
क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज में क्या होता है, द थिंग इज दैट दे हैव एक्सप्लेन कि जीन जितने आसपास होंगे, जीन्स जो है मेरे एक क्रोमोसोम पे, जितने उनके बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा, दे विल बी मोर सस्पेक्टेबल टूवर्ड्स लिंकेज, कि वो जितने पास होंगे लिंकेज उनके अंदर उतनी ही ज्यादा होगी और उतने ही आपके ट्रू प्लांट जो है ट्रू सेल्फ बनेंगे, न्यू चेंजेस नहीं आएंगे उसमें, ठीक है। तो दे गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर लिंकेज। एंड नाउ दे सेड कि जो क्रोमोसोम्स पे जो जीन अवेलेबल है उनमें जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, दे विल बी मोर सस्पेक्टेबल टुवर्ड्स योर क्रॉसिंग ओवर, उसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस होंगे एंड देयर विल बी चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन, रिकॉम्बिनेंट्स, जो न्यू जनरेशन आएगी उसमें रिकॉम्बिनेंट्स बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। लिंकेज में क्या होगा, पेरेंट लाइक बनेंगे, बिकॉज जीन से ऑलरेडी डिस्टेंस कम है तो वो जुड़ जाएंगे आपस में, जाके जुड़ेंगे तो मोर विल बी पेरेंट लाइक। क्रॉसिंग ओवर में क्या है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर होगी, जीन्स एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे एंड दे विल फॉर्म रिकॉम्बिनेंट्स। अंडरस्टूड दिस? आया समझ में अच्छे से? यस yes. कैसा लग रहा है आप लोगों को? डू यू फाइंड दिस सेशन इंटरेस्टिंग? The next question is the next question is longest phase of mitosis, जो हमारा सेल डिवीजन साइकिल होता है उसका लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? आपने पढ़ा है ना, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, एस फेज, इंटरफेज। तो विच वन इज योर लॉन्गेस्ट फेज? तो द फेज विच इज लॉन्गेस्ट इज योर प्रोफेज, ठीक है। कौन सा है आपका? प्रोफेज है। अब प्रोफेज में क्या होता है आपका यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन्स होता है, क्रोमेटिन, और वी कैन से दैट क्रोमोसोमल मटेरियल, जो आपके फर्दर क्रोमोसोम्स वगैरह बनेंगे या आपका जो जेनेटिक मटेरियल है फर्दर उसकी फॉर्मेशन होगी, आगे के स्टेजेस में जाके ब्रेक डाउन होगा, उसका कंडेंसेशन होता है यहाँ पे, वो आपका बनना शुरू होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई अब जेनेटिक मटेरियल उसको बनने में तो टाइम लगेगा, है ना। यहां से याद कर सकते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है कि देयर इज अ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल, वी कैन से दैट। एंड अब जेनेटिक मटेरियल है वो बन रहा है, कंडेंसेशन हो रही है उसकी, तो इट टेक्स अ टाइम, ठीक है, उसको टाइम लगेगा। तो दैट इज बाय योर दैट हैपेंस इन योर प्रोफेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of a chromosome is known as primary constriction? किसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन? तो द आंसर इज योर सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर क्या है? दिस इज माय क्रोमोसोम विच ज्वाइंस द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये आपके क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स है, जिसमें जो हमारा क्रोमोसोम है उसमें ये क्या है आपके? दीज आर योर सिस्टर क्रोमेटिड्स। When these sister chromatids join together, जब ये एक दूसरे से यहाँ ज्वाइन होंगी, या जो ये दो पॉइंट, ये जो सेंट्रल पॉइंट होगा which joins the sister chromatid, that is called as your chromatin. Sorry, that is called as your centromere. ठीक. The next question is, which mineral is the source of phosphorus and boron in the soil? कि नेचुरली जो मेरी सॉइल में फॉस्फोरस और बोरोन अवेलेबल होगा वो किस तरीके के मिनरल से आया है, या फिर कौन से तरीके की रॉक्स थी जिसमें वो मिनरल प्रेजेंट था एंड दे हैव गिवन मी द फॉस्फोरस। तो द आंसर इज योर एपेटाइट। जो एपेटाइट मिनरल है विच इज नेचुरली फाउंड इन रॉक, दैट इज रिच इन योर कैल्शियम फॉस्फेट। किसमें रिच है वो? कैल्शियम फॉस्फेट में रिच है एंड इट गिव्स योर on weathering, जब weathering हुई इसकी on weathering, and it's, yes, this is also important, it is a sedimentary rock as well, this is found in your sedimentary rock। when on weathering, जो आपका सॉइल मेकिंग प्रोसेस है, नेचुरली जब आपकी सॉइल बनती है, दैट इज कॉल्ड एज योर वेदरिंग बाय योर फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड। तो दैट सॉइल इज नेचुरली रिच इन योर फॉस्फोरस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the hydroxide, which hydroxide act as a cementing agent in binding the soil particle? कौन से हाइड्रोक्साइड एलिमेंट्स है सॉइल में which gives
नेचुरल बाइंडिंग, सॉइल पार्टिकल्स को जो है नेचुरली बाइंड करके रखते हैं, तो वो कौन से दो एलिमेंट है? दैट इज योर आयरन एंड एल्यूमिनियम। ये नॉन सिलिकेट मिनरल है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आयरन एंड एल्यूमिनियम इन द सॉइल आर विच टाइप ऑफ मिनरल, तो दे आर योर विच टाइप ऑफ क्ले मिनरल। दो तरीके के क्ले मिनरल है ना, सिलिकेट एंड नॉन सिलिकेट। सिलिकेट में कौन से हो जाएंगे? योर मोंटोमोरोलाइट, कायलनाइट, इलाइट, दीज आर योर सिलिकेट मिनरल, एंड दिस आयरन एंड एल्यूमिनियम आर योर नॉन सिलिकेट मिनरल विच हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल। ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, ये जोड़ के रखते हैं सॉइल पार्टिकल्स को आपस में, और न्यूट्रिएंट एज वेल, जो फर्दर मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है उनको भी बाइंड करके रखते हैं। सो दीज आर योर एल्यूमिनियम एंड आयरन, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज योर सेस्क्यू ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड आयरन कौन सी सॉइल में ज्यादा प्रेजेंट है? दे आर फाउंड इन योर हाई रेनफॉल रीजन, ज्यादातर आपके हाई रेनफॉल रीजन में पाए जाएंगे। एंड इफ excess of iron and aluminium are present in any type of soil that make the soil acidic in nature, क्या बना देंगे उस सॉइल को? एसिडिक इन नेचर। और अगर मुझे मेरी एसिडिक सॉइल अगर फॉर्म हो जाती है या प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, तो हाउ आई गोइंग टू ट्रीट दैट एसिडिक सॉइल? उसको ठीक करने के लिए मैं कौन सा केमिकल कंपाउंड अपनी फील्ड में अप्लाई करूंगी? सो दैट इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ओके, तो देखो अब एक से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? एक क्वेश्चन, दैट इज आयरन एंड एल्यूमिनियम कौन से टाइप के मिनरल है? नॉन सिलिकेट मिनरल। इनका अदर नेम क्या है? सेस्क्यू ऑक्साइड। फंक्शन क्या है? बाइंडिंग और ज्वाइंटिंग द सॉइल पार्टिकल टुगेदर। कौन से रीजन में पाई जाती है? ह्यूमिड रीजन और हाई रेनफॉल रीजन। एंड इफ आयरन एंड एल्यूमिनियम आर एक्सेस, तो क्या फॉर्म करेंगे? एसिडिक सॉइल। अब एसिडिक सॉइल को ट्रीट कैसे करेंगे? बाय एप्लीकेशन ऑफ योर कैल्शियम कार्बोनेट और CaCO3। So 5 to 6 question from this single question. Okay. So the next is your, which horizon is called as your fertile zone? कौन से सॉइल होराइजन को फर्स्ट हम फर्टाइल जोन बोलते हैं? तो सबसे पहले सॉइल होराइजन क्या है आपका? दिस इज योर वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन को क्या बोलेंगे हम? सॉइल प्रोफाइल। एंड हॉरिजॉन्टल सेक्शन को, लुक है, दिस इज माय सॉइल, एंड इफ आई डग द सॉइल डीप, अगर मैं सॉइल को डीप पर नीचे तक डग करूं, तो एक वर्टिकल सेक्शन बनेगा मेरे पास। दैट वर्टिकल सेक्शन इज कॉल्ड एज योर सॉइल प्रोफाइल। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। एंड द हॉरिजॉन्टल सेक्शन इज कॉल्ड एज योर सॉइल होराइजन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सा है? विच वन इज द मोस्ट फर्टाइल? तो कौन है आपका? ए होराइजन। इसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, एंड मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, ये क्रॉप की जो रूट्स है, दे आर ग्रोन हेयर, सबसे ज्यादा यहीं पे ग्रो करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट फ्यू ऑफ द सॉइल, कुछ सॉइल के अंदर एक और होराइजन प्रेजेंट होता है ए होराइजन के ऊपर, दैट इज योर ओ होराइजन। दैट इज अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कि जहां वो, दैट ओ होराइजन इज जनरली नॉट अवेलेबल इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल। सभी तरीके की सॉइल में ओ होराइजन अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ वहीं पर होता है जहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। अब ऑर्गेनिक मैटर कहाँ ज्यादा होगा? ह्यूमिड रीजन में, क्योंकि बारिश ज्यादा है, वेजिटेशन ज्यादा है, डीकम्पोजिशन ज्यादा होगा। दोज टाइप ऑफ सॉइल आर हैविंग योर ओ होराइजन। ओ होराइजन सभी में अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट टॉप फर्टाइल होराइजन और टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल वेयर ऑल द क्रॉप्स ग्रोस। ठीक है, रूट जो है जनरली यहीं तक ग्रो करती। द नेक्स्ट इज योर, विच सॉइल होराइजन इज कॉल्ड एज अ जोन ऑफ इल्यूविएशन, और आई विल से, अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग। कौन से होराइजन को जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग भी बोलते हैं, या फिर जोन ऑफ इल्यूविएशन भी बोलते हैं? तो दैट इज योर ई और A2 होराइजन। लुक हियर नाउ, as I have told you, our soil is divided into various soil horizon, है ना? इस तरीके के जो layers बने हुए हैं, that is your soil horizon। अब ये आपका यहाँ से यहाँ तक, this is your A horizon, which is further class divided into A1, A2, or sometime it is written as A or E horizon।
ठीक है, अब क्या होता है इस रीजन में, जो ये वाला रीजन है, दिस रीजन, व्हाट हैपन इन दिस रीजन, दिस रीजन इज सस्पेक्टेबल, यहां पर आपके क्ले मिनरल्स तो प्रेजेंट है, नाउ दीज क्ले मिनरल आर लीच डाउन टू द लोअर लेयर, ये लीच डाउन कर जाते हैं, यहाँ पे लुक है, अगर ये मेरे मिनरल्स हैं, दे विल लीच डाउन टू लोअर लेयर, ठीक है। अब होगा क्या इसमें कि आपका यहां से सारे के सारे क्ले मिनरल जो है वो नीचे की लेयर में आपके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो दिस इज द जोन ऑफ योर मैक्सिमम लीचिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम लीचिंग हो रहा है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि विच जोन इज कॉल्ड एज योर मैक्सिमम लीचिंग, तो यू कैन आंसर A2 और E जोन। समटाइम वो इसको क्लासिफाई नहीं करते हैं, ए ही दे देते, तो यू हैव टू आंसर ए देयर, ओके। एंड अब देखो कोई मटेरियल है लीच हुआ, अब वो कहीं पे जाके एक्यूमुलेट तो होगा ना, इट विल एक्यूमुलेट समवेयर, तो इट विल एक्यूमुलेट इन योर बी होराइजन, कहां पर जाकर एक्यूमुलेट होगा, इट विल एक्यूमुलेट हेयर इन योर बी होराइजन, तो दिस बी होराइजन इज कॉल्ड एज योर जोन ऑफ आइल्यूविएशन और जोन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन। जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग क्या है आपका, ई होराइजन, A2 होराइजन और ए, तीनों एक ही है, ठीक है, दैट इज योर जोन ऑफ illuviation, or you can say maximum leaching. Now this leach out material will accumulate somewhere, कहीं जाकर तो accumulate होगा, so that will accumulated into your B horizon. This B horizon is called as your zone of maximum accumulation, or you can call it as your zone of illuviation. Okay, अगर ELU से start हो रहा है then एक ही बात कर रहा है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इल्यूविएशन एंड आइल्यूविएशन में। इफ ILU से स्टार्ट हो रहा है देन it is talking about your B horizon. So next question वही है, I have explained that कि which zone is called as your zone of illuviation, so that is your B horizon. Now the next question is the arrangement of primary particle of the soil is called as, ये तो बहुत easy question, एग्री के बच्चों को अगर ये क्वेश्चन नहीं पता होगा तो धिक्कार है तुम लोगों पर, है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज योर सॉइल स्ट्रक्चर, कि जो मेरे सॉइल में प्राइमरी पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से प्राइमरी पार्टिकल मेरी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज योर सैंड, सिल्ट एंड क्ले, दीज आर द प्राइमरी पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन माई सॉइल, ठीक है। एंड द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल, कि ये किस तरीके से अरेंज है, कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, दैट अरेंजमेंट ऑफ दीज प्राइमरी पार्टिकल इज कॉल्ड एज योर सॉइल स्ट्रक्चर, कि डिफरेंट तरीके से जब जुड़े होंगे तो डिफरेंट तरीके के ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, लाइक क्लूमिनर बनाएंगे, प्लेटी बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन दैट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज टर्म्ड एज, कि किसी सॉइल में, लाइक आई हैव दिस बिग बाउल एंड आई हैव एडेड 25% ऑफ सैंड, 25% ऑफ योर क्ले एंड 50% ऑफ योर सिल्ट, तो ये जो प्रोपोर्शन है कि किस प्रोपोर्शन में मेरे सॉइल पार्टिकल्स अवेलेबल हैं किसी एक सॉइल में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, व्हाट वी विल टर्म्ड इट एज, वी विल टर्म्ड इट एज योर सॉइल टेक्सचर, क्या बोलेंगे हम उसको, सॉइल टेक्सचर, ठीक है। एंड दिस सॉइल टेक्सचर, जैसे आपका सैंडी सॉइल है, क्रम्बली टेक्सचर है, क्लेई सॉइल है, बहुत ज्यादा स्टिकी है, इट विल लाइक इफ क्ले का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो क्ले होगी, है ना, क्ले सॉइल। लोमी सॉइल कब बनती है, व्हेन they are not, I will not say equal proportion, but these soil particle will balance out each other's properties, a proportion where each of the soil particle will balance out the properties of each other, that type of a soil is called as your loamy soil। और इसी टेक्सचर के बेसिस पर हम फर्दर सॉइल को क्लासिफाई करते हैं, ये लोमी है, सैंडी है, सिल्टी है, कौन से टाइप की सॉइल है, ठीक है। Now the particle size of fine sand, जो फाइन सैंड है उसके पार्टिकल का साइज कितना होगा, तो जितने आपका जो सैंड पार्टिकल है, द सैंड पार्टिकल इज लार्जर इन द सॉइल, ये जो तीन पार्टिकल है सैंड, सिल्ट और क्ले, इसमें से सबसे ज्यादा जो बड़ा है वो कौन है आपका, सैंड पार्टिकल्स है, ठीक है, सबसे ज्यादा डायमीटर है उसकी। द नेक्स्ट थिंग इज दैट, थोड़ा यहाँ पे देखते रहो,
sand, silt and clay. Okay, now this sand, silt and clay, out of these three particles, this is the larger one, which is having the size of 0.2 to 0.02 mm. ठीक है, and this is the least active in the soil. लीस्ट एक्टिव मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है, न्यूट्रिएंट रिटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वाटर रिटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, इट डजंट केयर अबाउट एट ऑल. ठीक है, इट इज द लीस्ट एक्टिव, मतलब बोलते हैं ना जो सबसे आलसी पर्सन जो घर का है, तो सॉइल का जो सबसे आलसी पर्सन है दैट इज योर सैंड. नाउ सिल्ट ठीक ठाक है, ना बहुत ज्यादा एक्टिव है ना बहुत ज्यादा लेजी है. इट परफॉर्म्स मिनिमल, कि भाई मेरे बस की इतना ही करना है, आई विल डू दैट. ठीक है, तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अब अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड, सिल्ट एंड क्ले में से मैक्सिमम किसकी होगी, तो क्ले विल बी हैविंग दैट, क्योंकि वो मोस्ट एक्टिव है, वो होल्ड करके रखेगा वाटर को. एंड दिस क्ले इज द लीस्ट एक्टिव, इसको फर्क नहीं पड़ता कि वो रिटेन हो रहा है नहीं हो रहा. ठीक है, तो लीस्ट water holding capacity, clay will be having the maximum water holding capacity. ठीक है, and the clay is also why this is most active, क्यों है इतना ज्यादा active, because of the presence of negative charge on clay particle which may फर्दर उसके अंदर मिनरल्स वगैरह भी जो है वो भी उसको ये परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. बट द वन थिंग इज दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज ऑन द क्ले पार्टिकल दैट मेक्स इट द मोस्ट एक्टिव, क्योंकि जितने भी आपके पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे सब इससे क्या होंगे, आकर के अटैच हो जाएंगे. अब काओलोनाइट है, मोंटोमोरोलाइट है, इलाइट है, दे हेल्प इन द वाटर एब्जॉर्प्शन एज वेल. वो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, कुछ स्वेल कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, तो दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रॉपर्टी एंड दैट इज योर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, विच मेक्स इट द मोस्ट एक्टिव इन द क्ले पार्टिकल. इसमें मीडियम. अब आपसे कोई पूछे which soil particle is having the least water holding capacity, that is your sand. मिनरल की भी अगर पूछे तो भी कौन होगा, दैट इज योर सैंड. लीचिंग लॉसेस किस में सबसे ज्यादा होंगे, सैंडी सॉइल में. लीचिंग लॉसेस सबसे कम किस में होंगे, दैट इज योर क्ले सॉइल. न्यूट्रिएंट रिटेंशन सबसे ज्यादा किस में होगा, क्ले सॉइल. लीस्ट सैंडी सॉइल. ठीक है, तो पार्टिकल साइज इज योर 0.2 to 0.02 mm. The next is your what is the particle size of your silt. तो silt का कितना है, I'll make this 0.2 से लेकर के 0.02 mm तक, ये क्या है आपके सैंड पार्टिकल. 0.02 से 0.002 mm तक यहाँ पर क्या है आपके सिल्ट पार्टिकल. एंड बिलो दिस, अब चाहे कितने भी छोटे पार्टिकल हो, बिलो दिस ऑल द पार्टिकल विल कम इन योर क्ले पार्टिकल. ठीक है, तो पार्टिकल साइज ऑफ सैंड इज योर 0.2 to 0.02 mm, silt 0.02 to 0.002 mm, and below that 0.002 mm, that is your clay particle. So the question is, the next question is this, कि what is the particle size of clay. ये easy सा question है. Which chart or what compound is used to measure the soil color? Generally किस चार्ट को हम यूज करते हैं टू मेजर द सॉइल कलर, दैट इज योर मुनसेल कलर चार्ट, है ना. ये कलर चार्ट है, डिफरेंट ह्यू इसमें है, डिफरेंट ह्यू एंड स्केल्स आर अवेलेबल देयर. उसके बेसिस पर हम सॉइल के कलर को उससे मैच करके बता सकते हैं ये सॉइल का कलर कैसा है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर विच सॉइल इज मोस्ट डोमिनेटेड इन योर इंडिया. सबसे ज्यादा डोमिनेटेड विच सॉइल ऑर्डर, बेसिकली कौन सा सॉइल ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेटेड है इन योर इंडियन सॉइल. तो जो आपका सबसे ज्यादा जो डोमिनेटेड है दैट इज योर सॉइल ऑर्डर के बारे में बता देती हूँ. योर USDA हैव क्लासिफाइड, जब सॉइल की क्लासिफिकेशन कहीं नहीं हुई थी तो यूएसए ने क्या किया कि भाई वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लासिफाई द सॉइल ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब उन्होंने क्या किया, सॉइल को क्लासिफाई किया 6 ऑर्डर एंड 12 सब ऑर्डर्स में. ठीक है, अब जो वो 12 सब ऑर्डर से 6 ऑर्डर
ठीक, अब उन 6 ऑर्डर को फर्दर क्लासिफाई किया उन्होंने 12 सब ऑर्डर में, जो हम पढ़ते हैं वर्टिसॉल, एल्फिसॉल, योर ऑक्सीसॉल, हिस्टोसॉल्स, है ना. सो दीज आर द सब ऑर्डर्स एंड द क्वेश्चन आस्क कि कौन सा सब ऑर्डर इंडिया में सबसे ज्यादा अवेलेबल है. अब इंडिया में क्या हुआ, जब यूएसए ने क्लासिफाई कर दिया तो इंडियंस वर लाइक कि हम भाई हमारा करेंगे बिकॉज वी हैव हाईली डाइवर्स टाइप ऑफ सॉइल. ठीक है, एक ही स्टेट में हमारे डिफरेंट तरीके की सॉइल मिल जाती है, तो वी विल क्लासिफाई आवर ओन. अब they have followed the parameter which were set by USA. Planning Commission have used the parameter which were set by your USDA. उन्होंने वो पैरामीटर को यूज किया एंड दे हैव फर्दर क्लासिफाइड इंडियन सॉइल इनटू 8 टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज योर एलुवियल सॉइल, पिटी सॉइल, योर दैट रेड सॉइल, येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, सैंडी सॉइल. ठीक है, तो दे हैव क्लासिफाइड ऑन दैट. नाउ कि सबसे डोमिनेटेड वन कौन सी, एज वी नोज योर, अब अगर हम अपनी सॉइल का, अपने टाइप ऑफ सॉइल की बात करें तो दैट इज योर एलुवियल सॉइल, मोर देन 40%, है ना, 40% से ज्यादा है. अब देखते हैं, अब जो एलुवियल सॉइल है ये फर्दर 2 टाइप में, वन इज योर खादर, वन इज योर बांगर. अब जो ये बांगर है दैट इज योर ओल्ड एलुवियल एंड दिस खादर इज योर न्यू एलुवियल सॉइल. अब देखो, अब जो बांगर है दैट इज योर, अगर मैं ऑर्डर्स के तरीके से बात करूं, एल्फीसोल, क्या बोलते हैं हम इसको, एल्फीसोल. और जो ये खादर है, न्यूली फॉर्म्ड एलुवियल सॉइल है, दैट इज योर एंटीसोल. अब हमारी कंट्री में क्या है, दिस नॉर्दर्न रीजन इज मेजरली डोमिनेटेड बाय रिवर्स. रिवर अपने साथ सैंड एंड सिल्ट कैरी करती है इन ह्यूज अमाउंट एंड दैट इज डिपॉजिटेड इनटू योर फ्लड प्लेन्स. ठीक है, फ्लड प्लेन में वो डिपॉजिट हो जाएगा. अब वो तो अभी नया नया बना है ना, उसमें सॉइल प्रोफाइल कहाँ से बनी हुई होंगी, तो एंटी सॉइल आर न्यूली फॉर्म्ड न्यूली फॉर्म्ड एलुवियल सॉइल विच डजंट हैव स्पेसिफिक होराइजन और प्रोफाइल. ठीक है, तो इन इंडिया दिस एंटी सॉइल कवर्स 28% एरिया, दिस एल्फी सॉइल कवर 13%, वर्टी सॉइल दैट इज योर ब्लैक सॉइल 8%, एडी सॉइल जो एरिड और सेमी एरिड रीजन में आपकी जो सैंडी सॉइल मिलती है दैट कवर्स योर 0.4% एरिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक सॉइल बिलोंग्स टू विच सॉइल ऑर्डर. दिस इज all you knows, that is your vertisol. Vertisols are those class of a soil which is having high clay content and they have a property of shrinking and swelling, जिसमें shrinking और swelling की property बहुत ज़्यादा है, जो बहुत जल्दी shrink कर जाती है, बहुत जल्दी swell कर जाती है, dependent upon the availability of moisture. ठीक है, तो that is your vertisol. The next question is which type of a soil contains more than 30% of organic matter. कौन सा सॉइल ऑर्डर होगा जो 30% से भी ज्यादा आपका ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करेगा, तो दैट सॉइल ऑर्डर इज योर हिस्टोसॉल. इंडिया में इसको बोलते हैं पीट सॉइल एंड दिस टाइप ऑफ a soil contains more than 20 to 30% of organic matter. इतने से अगर ज्यादा है तो that will be termed as your histosol. And one more thing, एक और चीज यहां से बता देती हूँ, organic matter. If the soil is rich in your organic matter, then that soil will have your acidic impact. ठीक है, वो acidic in nature होगी because organic matter contains lot of acid like your fulvic acid, humic acid, which makes the soil acidic. इसलिए suggest भी किया जाता है ना कि आपकी saline या alkaline soil है तो try to add organic matter. वो water holding capacity भी अच्छी करता है, एग्रीगेशन फॉर्मेशन भी अच्छी करता है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट रिड्यूसेस द पीएच. पीएच को कम करता है, जो बढ़ी हुई पीएच है एल्कलाइन की तरफ, इट रिड्यूसेस इट टुवर्ड्स एसिडिक पीएच बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एसिड इन दैट. ठीक है, तो इफ एनी सॉइल इज हैविंग ऑर्गेनिक मैटर इन दैट, दैट विल बी नेचुरली एसिडिक. ठीक है, अब इसीलिए ही जो ह्यूमिड एरिया है वहां पर ऑर्गेनिक मैटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, दैट सॉइल इज नेचुरली एसिडिक इन नेचर. ओके, the next is your black soil contains which clay mineral. black soil में कौन सा clay mineral present है, तो that is your kaolinite and montomorolite. These two clay minerals are present in your
clay soil. Now this kaolinite, this is responsible for swelling and shrinking. ये किसके लिए responsible है? For swelling and shrinking, कि water जब absorb होगा तो आपका because of this केओलोनाइट मिनरल की वजह से होगा. नाउ दिस मोंटोमोरोलाइट, इसमें क्या होता है? दिस एक्ट्स एज अ लेटिस. इसमें ऐसे शेल्स है, लेटिस है, एक लेयर के बाद जैसे है ना आपका 2:1, 2 शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम, 1 शीट ऑफ योर दैट 2 शीट्स ऑफ सिलिका एंड 1 शीट ऑफ योर दैट एल्यूमिना. सो इट, अब क्या होता है इन दोनों, ये दोनों ही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग. दे आर हैविंग दिस लेटिस. अब इसमें क्या होगा ना आपका, द वाटर विल पेनिट्रेट इनटू दिस लैटिस. ठीक है, जो आपकी सिलिका की जो लेयर्स बनी हुई हैं दैट इज 2:1. अब उसके बीच में जगह है. ठीक है, इन दिस प्लेस द वाटर विल एंटर देयर. अब पानी यहाँ पे एंटर करेगा, जब विच गिव्स इट अपीयरेंस ऑफ स्वेलिंग. अब वो क्या करेगा, जब पानी वहां एंटर करेगा तो उसको स्पेस तो चाहिए. इट विल एक्सपैंड इट, वो इसको एक्सपैंड करेगा, विच गिव्स इट अ रिजेम्बलेंस ऑफ स्वेलिंग, कि वो स्वेल हो गई है. ठीक है, स्टिकी हो गई नीचे. अब जैसे ही इवेपोरेशन होगा, धूप निकलेगी, पानी वहां से लूजन अप होगा, तो क्या होगा, दिस विल द वाटर विल रिमूव फ्रॉम दिस लैटिस. अब उसमें से वाटर रिमूव होगा तो वो वापस से श्रिंक हो जाएंगे, वो जो सिलिका के आपके जो लैटिसेस बने हुए हैं. तो दिस इज वाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस 2:1 मोंटोमोरोलाइट एंड काओलोनाइट, द सॉइल गिव्स द अपीयरेंस ऑफ योर shrinking and swelling, because water will enter into the lattice which gives a resemblance of swelling. और जब water वहां से निकल जाएगा तो it will again shrink. जैसे स्पंज के साथ होता है, आपने स्पंज को पानी में डुबोया, it will expand. जब आप उसको स्क्वीज करेंगे, all the water will remove from that sponge, so वो shrink हो जाएगा. तो this clay soil will behave like a sponge because of the presence of these two clay minerals. Now the soil is deficit. Which soil is generally deficit in nitrogen content? कौन सी soil है जो deficit होगी? That is your black soil. Black soil को हम generally रेगूर soil भी बोलते हैं. This soil is generally rich in your iron, magnesium and aluminium. आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में जनरली जो आपकी ब्लैक सॉइल है वो रिच होती है, बट इट इज डेफिसिट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम में आपकी रिच होती है ब्लैक सॉइल, बट इट इज डेफिसिट इन योर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर. ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको से पूछ सकते हैं कि ब्लैक सॉइल इज जनरली डेफिसिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, या फिर ये रिच किस में है. ठीक है, now the vertical cracks again developed in which type of soil? That is your black soil, deep black soil. And I have explained you that कि वो होता क्यों है, कि जो लैटिस में वाटर गया था that was removed from the lattice of मोंटोमोरोलाइट, अब वो रिमूव हो गया है वहां से, तो क्या होगा आपका, that is that shrink it. अब वो चीजें जब shrink होगी तो उसका structure degrade होगा and it will develop your cracks. ठीक है, and the next thing is that जो आपका ये मोंटोमोरोलाइट एंड काओलोनाइट है, these are your सिलिकेट मिनरल्स. हाँ, ये चीज रह गई थी. क्ले के अंदर मिनरल्स जो है आपके सिलिकेट एंड नॉन सिलिकेट मिनरल है. नॉन सिलिकेट में आयरन एंड एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकेट में आपका कौन सा हो गया, दैट इज काओलोनाइट, इलाइट, मोंटोमोरोलाइट, ये हो गया आपके सिलिकेट मिनरल. एंड आई हैव एक्सप्लेन द प्रोसेस की क्यों श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग होती है एंड क्रैक्स भी क्यों डेवलप होते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द रेड कलर ऑफ द सॉइल, या रेड सॉइल के अंदर जो आपका कलर है, व्हाई इट डेवलप्स, क्यों डेवलप होता है वो. सो दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू द फेरिक ऑक्साइड. अगर फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट है सॉइल में, दैट विल गिव इट अ कलर ऑफ रेड. एंड फेरिक, अगर आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, देन इट विल गिव यू अ ठीक है, अगर रेड सॉइल के अंदर फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो रेड कलरेशन होगा. अगर ब्राउनिश कलर है, रेडिश ब्राउन कलर है, दैट इज ड्यू टू योर आयरन ऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड क्या है आपका, रिड्यूस स्टेट में होता है, और आयरन ऑक्साइड तो आपका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है. ठीक है, नाउ
phosphorus fixation is most probable in which type of soil? कौन से टाइप की सॉइल में phosphorus fixation सबसे ज्यादा होता है? तो that is in your laterite soil. phosphorus fixation किस में सबसे ज्यादा होता है? That is in your that laterite soil. अब देखते हैं इसको. phosphorus fixation होता है क्या? phosphorus fixation means कि the phosphorus will precipitate in the soil. क्या हो जाएगा? ये precipitate हो जाएगा soil. ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉइल में, देन इट विल नॉट बी अवेलेबल इन द सॉइल और अवेलेबल टू द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा प्लांट को, बिकॉज इट इज फिक्स्ड और प्रेसिपिटेट. अब होता क्यों है ये प्रेसिपिटेट? जस्ट लुक है. अब जो लेटराइट सॉइल है वो कहां पर बनती है? लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड इन हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल रीजन, कि वहां से अब ड्यू टू हाई टेम्परेचर सारे न्यूट्रिएंट्स आपके लीच आउट हो चुके हैं. नाउ एंड वन मोर थिंग, दैट लेटराइट सॉइल इज रिच इन योर आयरन एज वेल. लिसन द टेक्निकलिटी बिहाइंड इट. अब कोई सॉइल सस्पेक्टेबल है टू द लीचिंग मींस दैट इज प्रेजेंट इन योर हाई रेनफॉल रीजन. अब ज्यादा बारिश हो रही है वहां पे, तो क्या होगा? जितने भी सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं दे विल लीच डाउन टू द लोअर लेयर. लीचिंग हो जाएगी. स्पेसिफिकली सॉल्युबल कंपाउंड कौन से होते हैं सॉइल में? दैट इज योर सॉल्ट्स, और यू कैन कॉल इट देम सॉल्ट्स जो है आपके लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स हैं, लाइक योर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दीज आर प्रेजेंट देयर. नाउ these iron and aluminium make the soil acidic in nature. ठीक है, सबसे ज्यादा पीएच अगर मेरी 5 से डाउन जा रही है मींस दैट देयर इज अ हाई एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम इन द सॉइल व्हिच मेक द सॉइल एसिडिक. सबसे ज्यादा मतलब पीएच अगर 5 से नीचे है मतलब वहां पर एक्यूमुलेशन है आयरन और एल्यूमिनियम, एंड दैट सॉइल इज इन हाईली लीच्ड कंडीशन और वी कैन से हाई रेनफॉल रीजन. अब ये सॉल्युबल कंपाउंड्स तो आपके लीच आउट हो गए. बैलेंस करने के लिए, एसिडिक इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए कुछ बचा नहीं, अब वो लीच आउट हो गए. नाउ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस and all these things are present. Now phosphorus is already less available. ठीक है, वो less soluble और available रहता है soil में. Now what happen in acidic soil? This phosphorus will make compound with this iron. ये फॉस्फोरस जो है आयरन के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड मेक योर आयरन और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड मेक आयरन फॉस्फेट. ठीक है, ये आपका एल्यूमिनियम फॉस्फेट या आयरन फॉस्फेट बनाता है. दीज आयरन फॉस्फेट एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट विल प्रेसिपिटेट, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एंड विल नॉट बी अवेलेबल टू द प्लांट. प्लांट को अवेलेबल नहीं होते. ओके, द नेक्स्ट इज which fertilizer contain more than 25% of primary nutrient. अगर किसी फर्टिलाइजर में प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो है आपके 25% से ज्यादा है तो व्हाट विल यू कॉल देम? यू विल कॉल देम हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर. ठीक है, क्या कहेंगे हम उनको? हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर. प्राइमरी न्यूट्रिएंट अब कौन कौन से मेरे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. These are my primary nutrient. If in any of the fertilizer these three nutrient will make more than 25%, चाहे वो अलोन हो, सिंगल हो लाइक नाइट्रोजनस हो, यूरिया हो, या फिर आपका कंबाइंड फॉर्म में भी हो लाइक योर डीएपी. if they are forming more than 25% of that nutrient content then they are called as your high analysis fertilizer. ठीक है, अगर 25 से कम है तो उसको क्या बोलेंगे? अगर if the nutrient compound of your primary nutrient is less than 25% then we will call that fertilizer is low analysis fertilizer. क्या बोलेंगे उसको? low analysis. ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल्स में भी पूछे जा सकते हैं. दे विल गिव यू एन एग्जाम्पल लाइक डीएपी दे दिया, यूरिया दे दिया, एमोनियम फॉस्फेट दे दिया, म्यूरेट ऑफ पोटैश दे दिया, KCl दे दिया, एंड दे विल आस्क कि विच वन ऑफ दैट इज योर हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, विच वन इज योर लो एनालिसिस फर्टिलाइजर. ठीक है, तो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर क्या है? जिसमें लेस देन 25%
प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं. एंड व्हाट आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट? योर एनपीके. गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दैट. इसका एग्जांपल क्या है? एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट. ठीक है. So that is your one of the example of your low analysis fertilizers. यूरिया हुआ, डीएपी हुआ, these are your high analysis fertilizer. Rock phosphate हुआ, these are high analysis fertilizer. Now fertilizer which contain only one primary nutrient. कोई fertilizer जिसमें सिर्फ one primary nutrient है, चाहे वो आपका हो like your नाइट्रोजन हो या सिर्फ फॉस्फोरस है या फिर सिर्फ पोटेशियम है. What you will call it? क्या बोलोगे आप उसको? You will call that fertilizer as your straight fertilizer. क्या बोलेंगे हम उसको? Straight fertilizer. Okay. And the example is urea. यूरिया में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन होता है? That is your 46%. Now the fertilizer which contain all the three primary nutrient, जिसमें तीनों primary nutrient present होते हैं, what we will call it? Your complete fertilizer. क्या बोलते हैं हम उसको? Complete fertilizer. ठीक है. Now fertilizer application in rice field is generally done in which zone? अब देखो राइस में क्या है, you generally sow rice in your puddled field. हम puddled field में, और water you have to make a water stagnation of up to 5 to 10 सेंटीमीटर. इतना आपको water stagnation रखना होता है इन lowland rice में जब हम grow करते हैं. तो I have grown my rice here. This is the water. Rice is generally grown in your anaerobic condition. कल हम क्वेश्चन करेंगे कि कौन से फर्टिलाइजर सुटेबल हैं, लाइक योर फॉर एप्लीकेशन अमोनियम सल्फेट जैसे जो है जनरली राइस फील्ड में हम क्या अप्लाई करते हैं? अमोनियम सल्फेट हम अप्लाई करते हैं. तो अब देखो ये जो जोन है मेरा, विच इज दिस इज द लेयर ऑफ अ सॉइल एंड दिस इज द वाटर विच इज प्रेजेंट. ये आपका क्या है? This is a water and this is my layer of a soil. ये जो upper layer है which is in touch with the soil, sorry air के touch में, this is called as your oxidized zone. And the lower layer which is present beneath this oxidized zone, जो ये नीचे वाली layer है, this is called as your reduced zone. तो हम जो फर्टिलाइजर है राइस फील्ड में कहाँ अप्लाई करते हैं? वी विल अप्लाई द फर्टिलाइजर इन द रिड्यूस्ड जोन सो दैट वी कैन प्रिवेंट द फर्टिलाइजर लॉसेज और नाइट्रोजनस लॉस जो है वो हम बचा सके. बिकॉज इफ आई अप्लाई द फर्टिलाइजर इन ऑक्सीडाइज जोन तो वो किससे? वॉलेटिलाइजेशन लॉस से वो वापस एनवायरमेंट में उड़ जाएगा एंड इट विल लीच डाउन टू द लोअर लेयर. तो फॉर रिडक्शन ऑफ दैट लॉसेज इन राइस फील्ड वी अप्लाई फर्टिलाइजर इन द रिड्यूस्ड जोन. ओके. नाउ एप्लीकेशन ऑफ अ फर्टिलाइजर, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन कि फर्टिलाइजर को अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ विद इरिगेशन वाटर, व्हाट इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं हम उसको? दिस इज कॉल्ड एज योर फर्टिगेशन. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज योर फर्टिगेशन. एंड which fertilizer is not suitable to be applied with your फर्टिगेशन? कौन से फर्टिलाइजर को हम नहीं अप्लाई कर सकते फर्टिगेशन के थ्रू? जो सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में उसी को नहीं अप्लाई कर सकते. तो गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दैट फर्टिलाइजर विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. कौन सा नहीं है? दैट इज योर रॉक फॉस्फेट. मोस्टली जो फर्टिलाइजर हैं फॉस्फेट फर्टिलाइजर विच आर स्पेसिफिकली सिट्रिक एसिड सॉल्युबल, विच दोज आर नॉट अप्लाइड इन योर not applied by the this fertigation method, and generally we are not able to apply your rock phosphate because it is the least soluble in water. सबसे कम soluble है rock phosphate. तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है. So and one more question and this is the last question. The question asks, is super digested compost is enriched in which of the primary mineral, primary nutrient? कि super digested compost जो है वो कौन से mineral में सबसे कौन से nutrient में rich है? तो this super digested compost is generally rich in your phosphorus. ये phosphorus में सबसे ज़्यादा rich है. अब क्या होता है कि जब हमने कंपोस्ट इकट्ठा किया, ठीक है, वेस्टेज ऑफ योर लीव्स एंड दैट वी हैव कलेक्टेड, व्हाट हैपन?
वी हैव एडेड फॉस्फोरस इन दैट कंपोस्ट पिट, जो वो कंपोस्ट पिट जहाँ कंपोस्टिंग के लिए मैंने चीजें रखी थी उसमें मैंने फॉस्फोरस ऑलरेडी ऐड कर दिया. वाइल डिकम्पोजिशन, इट विल फास्टन अप द डिकम्पोजिशन, वो बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एंड इट हेल्प द डिकम्पोजिशन प्रोसेस. और जो लास्ट में मेरे पास जो कंपाउंड आएगा या जो कंपोस्ट आएगा, दैट विल बी रिच इन योर phosphorus, so that is called as your super digested compost. And this question can be asked to you कि दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि the compost which is rich in your phosphorus is called as super digested compost, या फिर super digested compost किस primary nutrient में enriched होता है, तो that is phosphorus. ठीक है. So this is all about for today. We have discussed a lot of questions, काफी चीजें हमने की directly or indirectly. I must say, keep studying, keep watching, and thank you so much. If you like our session, you can subscribe to our channel as well for more such videos. Thank you so much and have a nice day.